So the Law Commission has taken a stand and given a 30 days of consultation for a uniform civil code. What do you think is this UCC heading towards, and where do you think what should be the mandate to the government, even though this is right now is in the consultation process? This is the good step by the Law Commission, wherein given a period of 30 days, wherein inviting the suggestions from the all quarters. This is the welcome step, and wherein after receiving the all suggestions, and then they will compile the suggestion, then from that suggestion they will take out what are the good, what are not the good, what to be included in the UCC and what not to be included in UCC. But then, seeing the diversified country that India is and the population that India has, no doubt few state governments have also gone to the court on UCC. But where do you, as a law practitioner and somebody who is a very important member of Bar Council, what do you see the logic, the aim, and so that judgment to the people of the country, both the parties or more than one parties, all the parties who are there, what is your objective view on that, sir? Basically, the motive behind the enactment of this UCC is to make a uniformity. Uniformity, though we understand that there is a diversity in India, but within the diversity, the government is planning and intending to make a uniform code for all citizens. Here, we need to break the boundary of religion, caste, and the traditions. That is the motive behind this pious. I can say this is the pious motive of the government, wherein the government is thinking from the all quarters. This is the reason that the Law Commission has invited all the from all quarters to give their precious suggestions how we can formulate the law in the UCC so that can benefit the country at large and the citizen at large. What, in your opinion, what do you think has been the practice in the wider world, around the world? Because India, we have to take into account the big size of population and the diversity into account. जैसे कहते हैं कोस कोस पे भाषा बदलता है, पानी बदलता है, जो एक हिंदी में एक प्रोवर्ब है. ये प्राचीन काल से जब हम लोग कॉलेज स्कूल्स में पढ़ते थे तो ये भी हम लोगों को हमेशा इन्फॉर्मेशन स्कूल में अध्यापकों के द्वारा अपने परिवार के द्वारा ये दिया जाता था हमेशा कि यहाँ पे तो बोलियाँ दो कोस पे बदल जाती हैं, खान पान लोगों के अलग अलग हैं, पहनावा अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं. इस क्रम में किस तरीके से एकरूपता लाई जा सकती है. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी भारतीय हैं. सभी भारतीयों को ये समझना पड़ेगा कि अगर राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में आगे लेके जाना है, इसे एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाना है, तो जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्न जो फूल, जैसे आप गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, जहाँ पे बहुत प्रकार के फूल होते हैं, उन फूलों में कोई मतभेद नहीं होता है. उसी तरीके से जितने भी भारतीय हैं जो विभिन्न धर्म के हैं, विभिन्न कास्ट के हैं, विभिन्न बोलियों के हैं, विभिन्न भाषाओं के हैं, इन सबों की एक रूपता ये गुलिस्ता के जैसा है. तो सारे को गुलिस्ता को इकट्ठा करके एक रूप बनाते हैं तो सुगंधित देता है यहाँ पे से वातावरण को. तो सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा इसमें इन लोगों को इकट्ठे एक माला में पिरोकर एक रूपता लाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है. सर, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि समाज में जब सरकार होती है तो पॉलिटिक्स होता है, एग्जीक्यूटिव होता है. कुछ लोग इसको जो क्या कहें माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट एक चाल है, या हमारे अगेंस्ट हमें हमारे फैसिलिटीज़ से या हमारे जो रीति रिवाज हैं उससे महरूम रखा जाएगा. आपके हिसाब से उनको क्या ये यूसीसी
उस एंगल से देखा जाए, उस चश्मे से देखा जाए, उस प्रारूप से देखा जाए, या फिर यह है कि देर इज़ अ बिगर लार्जर मेरिट फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो बिकॉज द कंट्री इज़ गोइंग टू बी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड देन इवेंचुअली द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड मे बी अ डिकेड लेटर। यूसीसी के प्रारूप को एनेक्ट करने में जो सबसे बड़ी बाधा आएगी, जो बाधा आएगी और आ रही है, वो है फैमिली लॉ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के डिवीजन से रिलेटेड। हिंदू लॉ में भी डाइवर्सिटीज है, मिताक्षरा लॉ अलग है, दया भागा स्कूल ऑफ लॉ अलग है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि भारत में जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, तो इन लोगों की जो पद्धतियां हैं, शादी विवाह की जो पद्धतियां हैं, उसमें एक रूपता नहीं लाई जा सकती। उसमें स्कोप देना पड़ेगा, एक स्पेस देना पड़ेगा कि किस तरीके से शादी विवाह में किसी भी तरीके से किसी उसमें दखलंदाजी न देते हुए किस तरीके से इसको एक रूपता में लाया जा सकता है। रही बात, आप जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आपको ध्यान है मेघालय हमारा एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे की प्रथा है आम तौर पे हिंदू समाज में लड़कियां शादी होकर ससुराल जाती हैं। मेघालय में एक जनजाति हैं जहाँ पे कि लड़के शादी होकर ससुराल जाते हैं। वहाँ पे मातृत्मक मैटरनल डोमिनेंसी है वहाँ पे। उसी तरीके से आप देखें साउथ इंडिया में शादी की जो प्रथा है वो हमारे नॉर्थ इंडिया के शादी की प्रथा से थोड़ी भिन्न है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है, हिंदू लॉ में प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है कि ये इसमें शादी विवाह इन लोगों में नहीं हो सकता, जो निकट घनिष्ठ के आपके परिवार के संबंध नहीं है उसमें नहीं हो सकता। वैसे ही एक खाप पंचायत भी है। हाँ, आप देखें कि जैसे कि साउथ इंडिया में मामा और भांजी का विवाह एक उत्तम विवाह माना जाता है। अब वहाँ का जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को हम उसमें इन्फ्रिंज करते हैं, अगर किसी तरीके का अतिक्रमण करते हैं, उसमें किसी तरीके का लॉ उसके ऊपर बनाते हैं एकरूपता लाने के लिए, तो वहाँ के समाज से उसमें आएगा विरोध आएगा। आप जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि भारत में पार्लियामेंट ने बनाया डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का मतलब है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है शादी में, लेकिन उसके बनने के बाद भी ये प्रथा रुकी नहीं है, ये प्रथा अब भी चल रही है। इसके रूप अलग अलग हो गए, उपहार के रूप अलग हो गए, डिमांड के रूप अलग हो गए। तो कानून को अमली जामा पहनाने तभी चाहिए जबकि वो सशक्त रूप से समाज में स्वीकार्य हो। इसमें सिर्फ माइनॉरिटी कह देना, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक यहाँ कोई नहीं है, सभी भारतीय हैं, यहाँ पे सब भारत के नागरिक हैं। और कानून में तो सर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कानून में सबको एक साथ एक बराबर देखा जाता है, ये एक कानून का बेसिक प्रीमाइस है। आप देखें कि संविधान में हर एक नागरिक को समान अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ये कहना कि इस अल्पसंख्यकों के साथ ये भेदभाव होगा, उनको कुचलने की या उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनको दबाने की साजिश होगी, ये भी अन्यथा है। इन सारी चीज़ें आप देखें इन चीज़ों को कि उनके, अब उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जो इस्लाम में है कि शादी के लिए लड़की कब परिपक्व होती हैं, जैसे कि हिंदू समाज में है 18 वर्ष का था, लड़के के लिए 21 वर्ष का था। उसी तरीके से वहाँ पे जो लड़कियों के लिए, जब लड़कियाँ प्यूबर्टी अटेंड द प्यूबर्टी तो आज के डेट में 13 में भी हो रहा है अटेंड, 15 में भी हो रहा है, 16 में भी हो रहा है। वो बच्चियों के उनके रख रखाव, सामाजिक परिवेश, खान पान के ऊपर निर्भर करता है। तो उनका ये लॉ अलग है। अब इसी तरीके से देखें जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में सारे नागरिकों को कोडिफाइड है, सारे के ऊपर समान लागू है। अगर कोई भी अपराध करता है तो अपराध की संज्ञा में व्यक्ति आ रहे हैं, वो उनके लिए नहीं किसी भी तरीके का धर्म के आधार पे या जात के आधार पे या भाषा के आधार पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। अगर आपने चोरी की है तो सेम सेक्शन अट्रैक्ट होगा मुसलमान पे भी, सेम सेक्शन अट्रैक्ट होगा क्रिश्चियन पे, सेम हिंदू पे। लेकिन जो सबसे मूल समस्याएं आएंगी, मूल समस्याएं जो मैं समझ पा रहा हूँ,
उसमें आपके शादी विवाह से संबंधित आएंगी, आपकी प्रॉपर्टी से, संपत्ति के बंटवारे से हिंदू लॉ में संपत्ति के बंटवारे की रूपरेखा अलग है, कानून अलग है, हमारे जजमेंट्स अलग हैं। मुसलमान में, इस्लाम में अलग हैं बिल्कुल। वहाँ पे जो बंटवारे की प्रक्रिया, बंटवारे की जो पद्धति है उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से वो बिल्कुल अलग है। उनमें तलाक की जो पद्धति है वो बिल्कुल अलग है। हिंदू लॉ में तो तलाक की पद्धति कोडिफाइड है। तो ये जो मूल समस्याएं हैं कि किस तरीके से इन दो विषयों को यूसीसी के एक रूपता की परिधि में लाया जाए, अन्यथा ये जो है सो केओस हो जाएगा। फिर दो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। एक तो ये जो अंडर एज मैरिज और ईयर ऑफ अंडर एज मैरिज, जिसको एक मिसाल लिया गया था असम में, वो एक केस इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप बता रहे थे कि अब 18 साल तो सरकार में है, सरकार मानती है, और अंडर एज उसको मानेगी 18 से कम को, लेकिन रिलीजियस मैटर्स में ये अलग रहा। और आसाम में इस बारे में बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन और एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप भी बहुत करीब से देख रहे थे। दूसरी बात ये आती है, क्या सरकार यूसीसी प्रोट्रैक्टेड यूसीसी लेके आए या लॉ कमीशन ऐसा करे? ये दो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो जिस पे आपका क्या दर्शन है, क्या रुख होगा? भारत सरकार ने लॉ कमीशन गठित किया है। गठित करने का उद्देश्य ये है कि एक विषय वस्तु दिया गया लॉ कमीशन को कि इस विषय वस्तु को पे आप अपनी राय दें, एक रिपोर्ट तैयार करें कि किस तरीके से पार्लियामेंट में इसको एनेक्ट किया जा सकता है। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर ये है, किस तरीके से इसको लाया जा सकता है संसद के पटल पे, ताकि ये इसको अमली जामा पहनाया जा सके राष्ट्र के विकास के लिए और संपूर्ण जितने हमारे नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए। इसमें आर्थिक बिंदुओं को भी जोड़ना जरूरी है। सामाजिक एकरूपता, समानता को जोड़ना बहुत जरूरी है। आर्थिक एकरूपता आएगी, सामाजिक एकरूपता आएगी, अवसर, समूह को समान अवसर दिया जाएगा, तो ये जरूर से सफल होगा। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि यहाँ के नागरिक को किस तरीके से इस संबंध में शिक्षित किया जाए, क्योंकि भ्रमित और भ्रम फैलाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें। आप ये देखें, हर एक व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कोई भी सरकार कदम उठाती है या सरकार के खिलाफ कोई कदम उठता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। किसी भी विषय वस्तु को आप लेंगे तो उसमें दो पक्ष होते हैं, तर्क और वितर्क होते हैं। तर्क आप कोई पक्ष में बोलेंगे, कोई विपक्ष में बोलेंगे, लेकिन राष्ट्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के और समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि समाज में किस तरीके से वैमनस्य की भावनाओं को समाप्त करके उसमें एक समरसता लाई जा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम में आप देखेंगे यूसीसी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप ये देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को जिस तरीके से संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हर एक व्यक्ति को संविधान में आप कोई सा भी कार्य कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है। आप किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है आपको। आप ये देखें, जो संविधान में ने किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया किसी अपने नागरिकों के साथ में। अब हम प्राचीन काल से जो परिस्थितियाँ रही होंगी मध्य युग में, प्राचीन काल में, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुरीतियाँ नहीं आई हैं। पहले तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन सबों में जो वहाँ पे अनुभवी व्यक्ति थे, उस समकालीन व्यक्ति, उन लोगों ने जिस तरीके से उसकी रचना की, अज्ञानता के कारण आगे चलकर उसमें शिक्षा में ह्रास होने के कारण उसके मूल चीज़ों को हम लोग भूलते चले गए। भूल जाने के कारण ये समस्या ये आ गई फिर उसमें कि वो अपभ्रंश बनता गया, वो रूप जो है सो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होता चला गया उसमें आप, जिसके कारण की समस्याएं यहाँ पे आ गई हैं। यही मुख्य कारण है। तो सरकार के द्वारा ये जो पहल की गई है, अब लॉ कमीशन ने भी कल के ही अखबार में पढ़ा है कि 30 दिनों का समय दिया गया, अवधि दी गई है, जिसमें कि आपसे सजेशन मांगा गया, सुझाव दें कि किस तरीके से में एकरूपता लाई जाए, क्या क्या समाज की समस्याएं हैं, किस तरीके से संपत्ति का डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, शादी विवाह में क्या होगा, एडॉप्शन का लॉ क्या होगा। एडॉप्शन अलग अलग चीज़ें हैं, बच्चों क्या एडॉप्शन भी होता है, उससे संबंधित क्या समस्याएं आएंगी, किस तरीके से एक रूपता लाया जाए एडॉप्शन में। तो इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी बहुत गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। और समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति को
क्षेत्र में जाकर या जिस क्षेत्र में वो उपलब्ध है वहाँ से अपने राय को जरूर से सरकार को दें इस संबंध में, तभी एक परिपक्व और एक बहुत ही अच्छा उत्तम कानून का निर्माण हो पाएगा। एक आखिरी सवाल सर, डू यू थिंक दैट दिस हैज कम दैट दिस 30-day consultation process is a little bit too little too late, or do you think it is apt by the law commission, or do you think that government should have taken more consultation with the public at large, which is tacitly you also touched upon? In today's electronic, we are all aware that there is a provision of WhatsApp, Facebook, electronic media, print media, newspapers, everything is available here. Wide publicity we are doing. So, from the parliament to the village, panchayat, everybody is aware regarding the law commission, the time period given by the law commission to thereby solicited the suggestions how we will have to evolve the law. At the primary stage, we can think, we can say the 30 days is less, but let the 30 days be completed first. What is your final suggestion, or what is your final, how do you see, as somebody who has been spent decades in the practice of law, who has been at the bar, what do you see how it will evolve or permeate or graduate to the law? What is your personal thought process, if I may ask? Take this forthright, futuristic thought process from you. That futuristic thought, as I already discussed, if we will succeed in making an arrangement in the family laws, uniformity in a family laws, and in a division of property laws. These are the two key issues as per me. Adoption of a child, age of marriage, marriageable age of a child, rights of a women in a property. If we need to focus on that, if we will focus on that, if we will evolve something which is really compel the particular section of a society, this is what the government is thinking, it really benefits us. So if I understand what you're saying, the points that you have just raised, the pointers that you have just explained or raised, if those are taken care of, or some portion of that is included and adhered to in the UCC, that could be the landmark judgment in the country and around the world, for the world to see on this. That would be good if government and the public, entire public, not only government, the entire public will be benefited by that. We need only to understand. We unnecessarily not misunderstood. We are unnecessarily misunderstanding any project. If the project is pious, then definitely, then the intellectuals are here. This country is always dominated by the intellectuals. Intellectuals are giving their advice, suggestions. So I am requesting all intellectuals and all persons, those who are not intellectuals but they having experience of the society, they can also share. They can also give the contribution in making the UCC. This is not only UCC. This is the uniformity. We can understand the uniformity. Uniformity means that we are making all flowers into one. We are एक माला में सारे फ्लावर को पिरोने की कोशिश है सरकार की, जिससे और सुगंधित वातावरण आएगा, समाज में समरसता आएगी. तो इसलिए जो 30 दिन का समय दिया गया है, उस 30 दिन के समय को हर एक सिटीजन को इसका अपने अपने स्तर पे सरकार को अपने सुझाव दें, पोस्ट कार्ड पर लिख के दें. प्राचीन काल में पोस्ट कार्ड से ही हमेशा सजेशन दिए जाते थे. अब तो ईमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है. अब तो सजेशन सरकार के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा.
उसमें सरकार भी खुले मन से इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है। नहीं तो 30 दिन की अवधि नहीं दी जाती लॉ कमीशन के द्वारा। वो जबरदस्ती बना सकते थे कोई भी कानून का प्रारूप और सदन के पटल पे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आम जनता से, पढ़े लिखे लोगों से, अनुभवी लोगों से, देश के कोने कोने से हर एक लोगों का आह्वान किया है कि आप 30 दिन के अंदर अपने अपने सजेशंस दें, अपने अपने सुझाव दें, और सुझाव देने के बाद जितने भी सुझाव आएंगे लॉ कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं उस सुझावों पे जरूर गौर करेंगे। उसके बाद एक समरूपता वाली प्रारूप तैयार होगी, जो प्रारूप को भी, मेरा तो ये भी कहना है कि सरकार से प्रारूप बनाने से पहले उसे भी साझा करें नागरिकों से। तो उसमें जो कमियां होंगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी, जो मिथ होंगे उसमें, जो लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, वो सारे खत्म होंगे। Thank you, sir. Thank you for the time and elaborating on these wide issues, which will have a far-reaching impact not only in India but the world is watching, and probably will learn take some cue from Indian judicial system. Thank you.